Hello students, welcome back to the next lecture of chapter 4. In earlier lecture we have started miscellaneous exercise 4 and first question that we have already solved. Now move to the next question, question number 3 of miscellaneous exercise 4. Exercise 4 and question number 3. You have to find out the value of determinant and the determinant is given cos alpha cos beta, cos alpha sin beta minus sin alpha minus sin beta cos beta and 0. And third row is sin alpha cos beta sin alpha sin beta and cos alpha. ऐसा कुछ आपको दिया गया है और आपको उसको इवेल्युएट करना है. Once again it is a question related with the exercise 4.1 only because of just simply we have to evaluate. मतलब कि उसकी डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपांशन करेंगे. सो यूजिंग फर्स्ट रो आई एम गोइंग टू एक्सपांड. फर्स्ट रो को लेकर एक्सपांड करते हैं. फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा और वो रो और कॉलम को अगर निकाल दें तो आपको मिलेगा यहाँ पे cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस 0. cos अल्फा कॉस बीटा माइनस 0. अब सेकंड जो एलिमेंट है वो है cos अल्फा साइन बीटा. अगर वो एलिमेंट ले तो वो वाली रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो आपको मिलेगा साइन बीटा cos अल्फा एंड दिस विद 0. It's a 0, so minus sin alpha minus sin beta cos alpha and the last element it's minus sin alpha. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin alpha with sin beta into sin beta square, so minus sin alpha sin beta square minus sin alpha cos beta, it's a cos beta square, so minus sin alpha and cos beta the whole square. इस तरह से आपको इसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा. अब cos alpha cos beta with cos alpha cos beta उसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करें तो cos square alpha cos square beta. Here we are keeping a minus plus. Cos alpha with cos alpha, it's a cos square alpha. Sin beta with sin beta, it's a sin square beta. Then here minus sin alpha, and from these two terms, again minus sin alpha, you can easily observe that it is a common, and if you keep it out, minus sin alpha, so minus plus sin square alpha. And in the bracket sin square beta plus cos square beta. ऐसा आपको मिलेगा. और फिर बाद में ये दोनों में से cos square अल्फा कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर रहेगा cos square बीटा प्लस sin square बीटा और sin square बीटा प्लस cos square बीटा. This becomes a 1. Here it is a sin square alpha into 1. Once again here also sin square beta plus cos square beta, it is a 1. So here cos square alpha remaining, here sin square alpha remaining. So cos square alpha plus sin square alpha, this is equal to 1. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है और इसका जो आंसर आता है this is equal to 1. Simply you have to evaluate according to 4.1. Similarly, question number 4, it is good question for examination.
ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 मार्कर में पूछ सकते हैं, और वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.2 के 5th क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C, these are real numbers, and you told that delta, that is the determinant, B plus C, C plus A plus B, similarly C plus A plus B and B plus C, A plus B, B plus C and C plus A equal to 0 given, and using it you have to prove the two important things. अगर ये वैल्यू 0 है तो आपको प्रूव करना है कि A plus B plus C is 0 or A equal to B equal to C. And for that, let's try to simplify using the properties of determinant. ये आपको जो डेल्टा दिया है उसको हम इसमें जो भी रोज है या कॉलम्स है सभी रोज को एक ही रो में हम ऐड करते हैं। रो नंबर 1 इसमें हम करेंगे रो नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका मतलब यह होगा कि रो 1, 2 एंड 3 दिस मस्ट बी एडेड इनटू फर्स्ट रो। सभी रोज को आपको फर्स्ट रो में ऐड करना है, और सभी रोज को अगर फर्स्ट रो में ऐड करते हैं तो B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, तो वो सबका एडिशन होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। सिमिलरली ऑल्सो एट हियर 2A plus 2B plus 2C. Similarly, also at here 2A plus 2B plus 2C. और फिर बाद में C plus A plus B, A plus B, B plus C, B plus C, C plus C. It is like that. अब हम फर्स्ट रो जो है उसमें से A plus 2A plus 2B plus 2C जो है वो कॉमन ले लेते हैं। सो 2A plus 2B plus 2C स्कीपिंग कॉमन आउटसाइड, यहां पे रहेगा 1 1 1 एंड C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C and C plus C। इसके बाद अब एक ही रो में 3 1 1 1 आ गया है, तो 2 जीरोस लाना बहुत इजी हो जाएगा, और इसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉलम्स। कॉलम नंबर जो 2 है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से। सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा हियर 1 C plus A plus B, this becomes 1 minus 1 becomes a 0, A plus B minus C plus A। अगर हम A plus B में से C plus A को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A कट, there must be B minus C। Similarly, B plus C में से अगर हम A minus B निकाल दें, B कट, so it's a C minus A। सिमिलरली ऐसा ही कुछ कॉलम नंबर 3 में करेंगे। कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, अगेन 1 minus 1, दिस बिकम्स अ 0। B plus C minus C plus A करें, B plus C में से अगर C plus A निकाले तो B minus A, and similarly C plus A minus A plus B, so it's a C minus B। This way we are getting simplification। यहां से 2 कॉमन निकाल दे तो 2A plus B plus C, this is already equal to 0 given, and now we can simplify the determinant as we have obtained the 2 zeros। अब ये 2 zeros आ गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 को लेकर हम सिंप्लीफाई कर देंगे this minus this, so 2 with A plus B plus C, B minus C, C minus B। यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो ये भी हो जाएगा B माइनस, आपको C माइनस B है आपके पास, अगर माइनस कॉमन निकाला तो वो हो जाएगा B माइनस C, और B माइनस C विथ B माइनस C,
it's a b minus c the whole square. So minus b minus c का whole square minus b minus a और c minus a को मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन 0. तो एक रिजल्ट ऑलरेडी जो आपको लाना है वो आपको दिखता है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. सो हियर इफ यू आर कीपिंग ए प्लस बी प्लस सी दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 0. तो एक रिजल्ट तो आपको यहां से मिल जाता है. अब ये जो रिजल्ट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं. ए प्लस बी प्लस 2 विल माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर. बी माइनस सी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर. लेकिन आगे माइनस है तो मैंने साइन चेंज करके ही लिखा है इसको. फिर प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे माइनस bc माइनस माइनस प्लस ab माइनस माइनस प्लस ac एंड माइनस a स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. तो a प्लस बी प्लस सी 2 विथ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. Similarly here it is ab 2bc minus bc, it's a bc and ac equal to 0. ये सारे टर्म में से एक साथ में 2 स्टेप करते हैं. ये सभी जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो सभी टर्म में से माइनस कॉमन निकालेंगे और साथ साथ ये जो 2 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपको जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा. ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी दैट, साथ साथ में माइनस जो है सब में से कॉमन लिया हुआ है और ये जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 2ab 2bc 2ca दिस इज इक्वल टू 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी 2a स्क्वायर जो है वो होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2c स्क्वायर होगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सबसे पहले हमने 2a स्क्वायर मतलब एक्सपांड किया 2a स्क्वायर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 2b स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2c स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और सभी जगह ये बीच में मिडिल टर्म डालेंगे. a स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है उसका मिडिल टर्म 2ab और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर उसका मिडिल टर्म है 2bc. सी स्क्वायर और स्क्वायर उसका मिडिल टर्म है 2ca. So now this becomes a perfect square. This becomes a perfect square. The first 3 terms it's a a minus b square. दूसरे जो टर्म्स है वो b minus c का स्क्वायर और फिर बाद में c minus a का स्क्वायर होगा. ये जो है a minus b का स्क्वायर है. b square minus 2bc plus c square it's a b minus c the whole square. c square 2ca a square so c minus a का स्क्वायर it's a 0. And now a plus b plus c. Now you have either a plus b plus c equal to 0 or this term would be 0. तो जो पहले आपको जो फर्स्ट रिजल्ट लाना था कि a प्लस बी प्लस सी इज 0 और दूसरा रिजल्ट था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी. इसमें से फर्स्ट रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. You can easily observe that this is square, square and square and the sum of the square is 0. इसका मतलब ये होगा कि सभी जो टर्म्स है वो 0 होगा तो ही ये केस पॉसिबल है. अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है तो भी 0 नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट बिकम्स अ 2 नॉट 0. इट इज ओनली पॉसिबल 0
when all these terms are 0 0 0, a माइनस बी भी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा, c माइनस सी भी 0 होगा। और या इसके अलावा अगर कोई रियल नंबर है तो कोई भी रियल नंबर का जो स्क्वायर आता है वो पॉजिटिव आता है। और दूसरी बात, एक के बीच में प्लस है तो एडिशन करेंगे, रियल नंबर का एडिशन करेंगे तो आपको कोई रियल नंबर मिलेगा और वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 0 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही केसेस में ये पॉसिबल है जब भी ये तीन जो है टर्म्स वो 0 0 0 हो गए तब। तो यहाँ पे a माइनस बी बिकम्स 0, therefore a इक्वल टू b माइनस c बिकम्स 0, so b इक्वल टू c and c इक्वल टू a, and therefore we have a इक्वल टू b इक्वल टू c। सो ये दोनों आपके जो प्रूफ है वो मिलेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, therefore a plus b plus c is 0 और a इक्वल टू b इक्वल टू c। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसमें आपको सॉल्व द इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। वंस अगेन, you are given the determinant x plus x and x plus a x और x plus a। अगर आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 में किए थे। मैंने आपको उस टाइम पे शॉर्ट मेथड बताया था। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसपे आपको डायग्राम्स दिखेगा और बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है अगर सेम दिखते हैं, देन वी आर डूइंग ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स, आइदर रोज और कॉलम्स एड इनटू वन रो और वन कॉलम। इसमें सारी रोज को हम फिर से एक बार फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। आगे ऑल द रोज आर एडेड इनटू फर्स्ट रो। सबको फर्स्ट रो में अगर हम ऐड करें तो x प्लस x इट्स अ 3x प्लस a, x प्लस x इट्स अ 3x प्लस a, x and x इट्स अ 3x प्लस a इक्वल टू c। और बाकी के दो रोज है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा करने से आपको एक इजीएस्ट वे है कि सभी फर्स्ट रो जहां पे हमने ऐड किया है वहां पे सारे एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं और अगर वो एलिमेंट्स को हम कॉमन निकालते तो वहां पे आपको 1 मिलेगा और फिर वो 1 में कॉलम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0 मिल जाएगा। सो दैट इज आवर मेन क्राइटेरिया। If you want to solve the determinant, you must try to obtain the maximum number of zeros in the determinant, and that's why 3x plus a जो है यहां से हम कॉमन निकाल दें, 1 1 1 x plus a x and x plus a equal to 0। अब इसके बाद आप यहाँ पे कॉलम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो भी हमने आगे जैसे देखा उसी तरह से। कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करते हैं और इसी तरह से कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करते हैं। सो 3x प्लस फर्स्ट कॉलम विल रिमेन सेम। अगर 2 में से फर्स्ट कॉलम को निकाल दिया 1 माइनस 1, दिस बिकम्स 0। x प्लस a माइनस x इट्स a, x है और ये x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 1 माइनस 1 इट्स 0। x माइनस x अगेन इट इज 0 और ये x प्लस a है, इसमें से अगर x निकाल दे तो इट्स a। दिस इज अब
यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और भी इजी हो जाएगा एज वी हैव ऑब्टेन 2 zeros इन द फर्स्ट रो। अब हमको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये 1 को लेकर रो और कॉलम को निकाल देंगे। सो 3x प्लस a 1 विथ a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। सो 3x प्लस a इक्वल टू 0 और a स्क्वायर इज 0। तो ऐसा कुछ होगा, आपको सॉल्यूशन लाना है। सॉल्यूशन लाना है मतलब कि x की वैल्यू लानी है, तो x की वैल्यू लानी है तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा x इक्वल टू माइनस a बाई 3। सो दिस इज द आंसर और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू माइनस a बाई 3। इस तरह से आपको इसका आंसर मिलेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वो भी प्रूडेड टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यस। क्वेश्चन नंबर 5 में a डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो वो पॉसिबल नहीं है। सो स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको x का आंसर माइनस a बाई 3 मिलता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर एंड ए सी एंड सी स्क्वायर। This is equal to 4a square b square c square। ये आपको प्रूव करना है। इसकी जो वैल्यू है वो 4a square b square एंड c square है। Let us see how to prove it। Once again, देखो ac प्लस c square है, जहां से आप c कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी c है, लेकिन यहाँ पे ये a स्क्वायर के पास c नहीं है। सिमिलरली यहाँ से a कॉमन निकलेगा, यहाँ से a कॉमन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा। इसी तरह से a भी b स्क्वायर और b c में से b कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा। तो एक काम करते हैं, कुछ कॉमन निकल जाए, इसके लिए हम सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ये जो कॉलम है वहां पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी में यहाँ पे ए कॉमन, तो ए प्लस ऑलरेडी ए बी। सिमिलरली दूसरे कॉलम में बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी है, वहां पे बी अगर कॉमन निकाले तो बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर है, वहां से अगर सी कॉमन निकाले तो ए प्लस सी AC and C square. And now you can easily observe that A common, B and B common, C and C common. So column 1 number 1 में से A common निकालते हैं, column number 2 में से B common और column number 3 में से C common लेंगे। तो सबसे पहले A B C ऐसे यहाँ से कॉमन आ जाएगा कॉलम में से, जहां पे आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है। इसमें से ए बी सी को आपने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया। अब बाकी के जो टर्म्स रहेंगे, ए स्क्वायर में से ए कॉमन तो ए, यहां से ए कॉमन लिया तो ए प्लस बी, ए बी में से ए कॉमन लिया तो बी, बी सी बी स्क्वायर और बी में से बी और बी कॉमन है तो सी बी एंड बी प्लस सी, सी और सी कॉमन है तो ए प्लस सी, ए एंड सी इट इज दैट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके 4abc ऐसी वैल्यू लानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी abc ला दिया है, तो 4abc into abc it's a 4a square b square system, and that's why now we are getting 4abc for the remaining determinant.
अब इसके लिए फिर से एक बार सबको एक ही रो या एक ही कॉलम में ऐड करते हैं। रो नंबर 1 के अंदर रो नंबर 1 +2 +3 करेंगे तो a प्लस b प्लस b सब कुछ फर्स्ट रो में ऐड हो जाएगा। तो 2a + 2b c प्लस b प्लस b प्लस c मतलब 2b + 2c होगा। सिमिलरली a प्लस c और a और c को ऐड करेंगे तो 2a + 2c होगा। वो सिंप्लीफिकेशन लिखते हैं 2a + 2b 2b + 2c एंड 2a + 2c a + b b + c a एंड c। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने का हम ट्राई करेंगे। ये 2a + 2b है, सब में से फर्स्ट रो में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2abc a + b b + c c + a + b b and a b b + c and c। यहाँ पे अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस तो सब्ट्रैक्शन करने से आपको मैक्सिमम जीरोस लाने हैं। वो आपको पता है कि डिटरमिनेंट को अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाएंगे तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो इजी हो जाता है। तो जीरोस लाने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है उसमें हम फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करते हैं तो 2abc a + b - a + b इट्स अ 0। इसमें से अगर b निकाल दे तो c, इसमें से निकाल दे अगेन इट इज इट्स a + b b a b b + c एंड c ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली अभी और जीरो लाना है तो यहाँ पे ये जो c और c है कॉलम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। कॉलम नंबर 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देंगे तो c - c दिस बिकम्स अ 0। फर्स्ट कॉलम ऐसे का ऐसे रहेगा c - c दिस इज 0 b - a and it's a b only. This is c a c and after that just now we have to simplify by taking only c क्योंकि फर्स्ट रो में 2 जीरोस आ गए हैं तो अब c को लेकर सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा आपको। यहाँ पे c है वो रो और कॉलम को निकाल दे तो दिस माइनस दिस एंड दिस वे वी आर गेटिंग द सिंप्लीफिकेशन। पहले से ऑलरेडी हमने 2abc कॉमन लिया हुआ है और बाद ये c को लेकर सिंप्लीफिकेशन b × a + b माइनस b × b - c और फिर से एक बार b और b कॉमन और c तो ऑलरेडी आगे है तो bc अंदर रहेगा सब्ट्रैक्शन a + b - b एंड प्लस a। So 2abc this will be cut and so it's a bc with 2a। So 2abc with 2a with bc again it is a 2abc। So 2abc into 2abc it's a 4a² जो आपको प्रूफ में लाना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये भी आपको 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं, ऐसा प्रूफेड है। आपको याद रखना है कि कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज और मैक्सिमम जीरोस लाना है।
और मैक्सिमम अगर जीरोज लाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपको, अगर यहाँ पे एक ही रो या एक ही कॉलम में जीरोज मिल जाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत इजीली मिल जाता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर आपका हमने किया, क्वेश्चन नंबर 6। आज हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।